Yo Namaha. Uh, Today we discuss the great Dharma Samrat Karpatri ji on the occasion of his Jayanti on Shravan Shukla Dvitiya. And we all know that Swamiji has been one of the most prolific scholars of Dharma Shastras, and he was an evident Swarupa of Vagadevi. And his text on Vedanta, his text on Dharma Shastras, his text on contemporary politics, his text on uh, the issues that were not really relevant at his time, but since he was a Bhavishya Drishta, so he also tackled issues which were likely to hit our Hindu society in a few days. So just a brief introduction of Swamiji. Swamiji was born in Pratapgarh district of present Uttar Pradesh, and in 1907, and he was ordained into sannyasa by none other than uh, the Peethadishwar of Jyotish Peeth, Jagat Guru Sri Brahmanand Saraswati. And thereafter, Swamiji has resided in Kashi and traveled on foot across the entire spectrum of Uttar Bharat and rekindled the dying elements of Sanatan Dharma. So so today it becomes very relevant for us to discuss his ideas, which were having a foresight, as well as his works, which have not been really discussed in the contemporary domain, especially with respect to the current dispensation of the government. So Swamiji was very profound in terms of he was a great acharya. He was a dharma pravartaka because he established different dharma sanghas. He established the dharma sangha. He revived Gurukul in different corners of the country. He also tried to revive different yagyas which were uh, getting out of practice because there were elements in the society that looked down upon them and criticized them in the most Vedic and unscholarly fashion. The second part of Swamiji's is that his scholarly works. His scholarly works span from the Veda Bhashyas, that include the Yajurveda Bhashyas, his work on Vedanta, and also in the field of contemporary politics, where he wrote a phenomenal book called Marxwad and Ramraj, and that needs to put forth, where he discounted or uh, he put a very scholarly critique of all contemporary scholars and showed that they do not stand anywhere in front of our traditional texts. Then he also worked in terms of Goraksha, which is a very contemporary issue that affects our society. And then he established this tradition where the Shishyas of Swamiji are today leading our mathas. Our most revered Jagat Guru, Shri Nishlanand Saraswati, is leading the same battle. So I open the discussion with this slight introduction, and we'll keep on talking on this. Okay, so any comments, Vishalji? Harshiji, we can now move on to the question Yeah. and please continue. Yeah. So we are. The question has to be raised Uh, in. let Mr. Srivat take over. Yeah. Uh, my introduction to Karapatriji was through the Vedartha Parijata. So actually, I happened to see the book some 10 years ago. My Acharya was a very great
Rigveda Ghanapati. So he had gone through the book once, and he had promised that he will teach me Vedartha Parijata word by word. But then, unfortunately, my Acharya, he passed away. So since a very long time, I've been longing to uh, learn the Vedartha Parijata from a authoritative source. So as is very very clear, mainly his books on uh, some of the topics which even Paramparikas are not willing to touch, like the question of whether one has to whether one is allowed to do yatra outside Bharatavarsha. See, even here, some Peethadishwaras have already started compromising on this issue, but then Swami Karapatri had very clearly shown from Shastriya references that um, doing Videsha Yatra is, will lead to Patana of a Brahmana. So that is a very important book which we need to, because we have to sort of, when our own Brahmanas are doing Videshi Yatra, then what to speak of others? There is nothing. He was very, very clear that if he is a Brahmana, he should not do Videshi Yatra. So that is a very important book that Brahmanas need to learn. And his granthas, they span quite a few shastra aspects, like his translation of the Bhashya on Yajurveda Samhita. In fact, it was very heartening to know that among the very rare people who did a Bhashya for Yajurveda, that too so late in the day, at least in the past century, except for Brahmamuni Parivrajaka. Brahmamuni Parivrajaka wrote a translation of Bhashya. You cannot call it a Bhashya because it was written in Hindi and it doesn't follow the Bhashya Krama of this Brahmamuni Parivrajaka. This Brahmamuni Parivrajaka has written a beautiful translation of Samveda and Atharvaveda in Hindi. Apart from him, there was nobody else who has written such a beautiful work on Veda, except for Swami Karapatri has written a proper Bhashya, and there comes a very maligned part of Veda where Muslims, they target the Ashwamedha. So they create all sorts of dirty stories on Ashwamedha, and there the Bhashya of Karapatri Maharaj had come very handy to me. In fact, not for any countering of others, but for my own understanding. So that part I had the privilege to read. In fact, anybody who's doing any Veda Adhyayana, they have to, this Bhashya of Karapatri Maharaj has been published in 6 or 7 volumes, if I'm not wrong.
And then to think that he was able to organize all this when he was doing all the quote unquote activism that he was doing, it's just unbelievable. The sort of stages that he would have had, and the sort of karya kshamata he had is just unbelievably great. So his another very important book is Ramayana Mimamsa, where he has taken up many so-called controversial topics. So these are all must read, because any person who is attacking Sanatana Dharma these days, he will attack our Purana, he will attack our Itihasa. Basically, Rama is the pet peeve of feminists. So in Ramayana Mimamsa, Swami has taken up many important topics and dealt with them. So it's a covering work on its own. The other books that I want to study but haven't been able to study yet is Bhakti Sudha, Radha Sudha. So these are concerning Bhagavatam. So from my side, I'm just as a seva to this group. I'm just proposing that whenever people are ready and whenever we can get together as a group, why don't we start reading some of these important books of Karapatri Maharaj? It is all well to sing praises, but then there are or Vishal has read Marxwad and Ramraj. Probably Harshit has also read. So I haven't read that book. And I have read parts of Ramayana Mimamsa. I have a very deep interest in Ramayana. Somebody else would have read some other book. So it will be very nice to sort of start reading up these books one by one, and then those who have already read the book, they will guide the others through those books. So this is some activity that we can do as per convenience. Once in a week, we can have this book reading session recorded for the benefit of others or whatever. I'm just proposing all these things can be done. Let us start doing something positive in the direction of doing Adhyayana of Swami's works. With this, I would stop here. Jai Jagannath. Yeah, can we move on to Brijesh ji? हेलो, You're audible. आवाज आ रही है? आ रही है जी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमः सर्वेभ्यः। जय जगन्नाथ। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, उसको जब हम याद करते हैं तब उसकी प्रशंसा करना मतलब सूर्य को दीप दिखाना, दीप का दर्शन कराना। लेकिन अपने जो भाव है वह मैं व्यक्त कर रहा हूँ। स्वामी जी में यह एक विशेषता थी कि उसमें सामंजस्य बहुत अच्छे प्रमाण में था सब विषयों का।
खास करके कहे तो सामान्यतया हम देखते हैं कि जो अच्छा वक्ता होता है, वक्तृत्व अच्छा करता है, उसको लेखन कार्य में ज़्यादा विद्या नहीं होती, लेखन कार्य में ज़्यादा उसकी गति नहीं होती। और जो लेखक है, अच्छा लिखता है, उसको अगर वक्तृत्व करने को कहो, बोलने को कहो, किसी विषय को स्पष्ट करने को कहो, तो वो वह नहीं कर पाता। और ये दोनों कला विद्या जिसमें है, वक्तृत्व और लेखन, वो शास्त्रार्थ में पीछे पड़ जाता है। लेकिन स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज में इस तीनों का जो सामंजस्य था वो अभूतपूर्व था। शास्त्रार्थ में तो वो इतने पारंगत थे। मैंने स्वामी श्री निश्चलानंद जी से सुना है कि जब वह शास्त्रार्थ करते थे तब पूर्व पक्ष को प्यार से ऐसे सुनते थे। उसकी बड़ी विशेषता यह थी कि वह पूर्व पक्ष को अपना दुश्मन नहीं समझते थे, प्यार से उससे बातें करते थे, उसका पक्ष सुनते थे। बाद में वह कहते थे कि आपने बोल लिया सब, आपका सिद्धांत कह दिया। सामने वाले कहते हैं कि जी हमारा सिद्धांत यह जो सा था वो कह दिया। बाद में स्वामी जी उसको कहते हैं कि आपके सिद्धांत को मजबूत करने के लिए यह पक्ष भी आपको रखना चाहिए था, यह बात भी आपको कहनी चाहिए थी, जिससे आपका पक्ष और भी मजबूत होता। और बाद में उसका निराकरण करते हैं, उसके पक्ष का खंडन करते हैं श्रुति सम्मत सिद्धांतों से। तो यह बहुत बड़ी बात थी। तब भी उसका शास्त्रार्थ में कोई समान कोई था नहीं। यह तो हुई सिर्फ कला की बात। और जो सामंजस्य स्वामी जी में था वह है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। क्या होता है कि सब तो नहीं, लेकिन अब भक्ति प्रधान जो लोग हैं वह ज्ञान को तुच्छ समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ भक्ति से ही काम चल जाएगा। और जो ज्ञान प्रधान लोग हैं, जो ज्ञान को महत्ता देते हैं, वो लोग भक्ति की कोई गणना नहीं करते कि ये भक्ति क्या है, भक्ति कुछ नहीं है। और ज्ञान और भक्ति दोनों जिसमें है वो लोग अवगणना करते हैं वैराग्य की। उसमें वैराग्य की अभाव सा दिखता है, उसमें उसके जीवन में वैराग्य सा अभाव सा दिखता है। लेकिन स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के जीवन में अगर देखें तो भक्ति का भी उतना महत्व था, ज्ञान का भी उतना महत्व था और वैराग्य का भी। स्वामी जी में भक्ति कितनी थी यह हम उसके ग्रंथ है, जो राधा सुधा है, भक्ति सुधा है, रामायण मीमांसा है, भक्ति रसार्णवः यह ग्रंथ है, इसमें जिस भक्ति का निरूपण किया है। हाँ, स्वामी जी के जीवन में वह भक्ति नहीं थी जिस भक्ति की लोग आजकल पूजा करते हैं। आजकल के लोग भक्ति की जो व्याख्या करते हैं वह भक्ति उसमें नहीं थी, क्योंकि आजकल लोगों ने भक्ति को सीमित कर दिया है। सिर्फ भगवान को फूल चढ़ाना भक्ति नहीं है, यह भक्ति को सीमित करना है। भक्ति की जो व्याख्या भगवत पादाचार्य श्री शंकराचार्य जी महाराज ने की है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्यभिधीयते, विवेक चूड़ामणि। यह भक्ति स्वामी जी में भरपूर थी। आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष थे वह, यह तो उसको देखते ही समझ आता है। दूसरी बात ज्ञान की पराकाष्ठा जिसे कहते हैं। वेद को समझना ही मुश्किल है, हम वेद के मंत्र को नहीं समझ सकते, लेकिन यजुर्वेदादि भाष्य कृपात्री जी महाराज ने लिखे हैं। और वेद के प्रति सिर्फ इतना नहीं कि ज्ञानी थे, लेकिन वेद के प्रति अनन्य निष्ठा रखने वाले थे, वेद के प्रति प्यार रखने वाले थे। वेद का सिद्धांत का जो अपने जीवन में उतारा था उसने। कार्यवशात लोगों ने यह कहा कि ओम की दीक्षा सबको दी जानी चाहिए, लेकिन कृपात्री जी महाराज ने कहा कि नहीं, वेद इसकी अनुमति नहीं देता, तो यह अनुचित है। और यह बात सिद्धांत से, तर्क से लोगों को समझाई। और वैराग्य की ऐसी कोई दृष्टांत नहीं दे सकते, क्योंकि वैराग्य तो स्वामी जी के हर कर्म में था, हर क्रिया में था, वाणी हर स्वामी जी की उस शब्द में था जो वो बोलते थे। वैराग्य का दर्शन हर क्रिया में होता है। लेकिन एक दृष्टांत से समझना चाहिए कि सब संत समाज ने निश्चित किया कि स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को उत्तरामन्याय ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की पदवी अर्पित करें। लेकिन कृपात्री जी महाराज ने कहा कि नहीं, मेरा जो लक्ष्य है वह है गौरक्षा,
वेद के प्रति आस्था प्रकट करना लोगों के हृदय में आज जो मेरे कार्य है वह शिथिल हो जाएंगे अगर मैं यह पद स्वीकृत करूंगा। तो उसने उस पद को स्वीकृत नहीं किया और अपने गुरुदेव को उस पद पर आसीन कराया। तो इतना वैराग्य था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान था, सब वेद को जानते थे, लेकिन जितना भी ज्ञान था उतना क्रिया में भी था, स्वामी जी के आचरण में भी था। आजकल लोगों में ज्ञान तो होता है लेकिन आचरण में नहीं होता। वह ज्ञान को जो क्रिया में लाना चाहिए वह नहीं ला सकते, और यही ज्ञान फिर भार रूप हो जाता है। ज्ञानम भारः क्रियाम विना। लेकिन स्वामी जी के जीवन में वह ज्ञान का आचरण था। उनकी दिनचर्या हम देखें, सुबह 2:30 बजे वह उठ जाते हैं, चाहे कभी भी सोए, 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे, लेकिन 2:30 बजे वह उठ जाते थे, ध्यानादि करते थे। बाद में स्नानादि, शौचकर्म आदि करके पवित्र होकर भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए बैठते थे। 3 घंटे तक पूजा चलती थी स्वामी जी की। उसके बाद अपने शिष्यों को उपनिषद आदि का अध्ययन करवाते थे और दिन में 3 बार स्नान करते थे। पवित्रता का तो इतना ख्याल रखते थे। और स्वामी जी से मैंने सुना है, निश्चलानंद स्वामी जी से, कि प्रतिदिन सप्तशती का पाठ करते थे स्वामी जी, और वह भी संपुट, और वह भी शीर्षासन में। यह एक तपश्चर्या की पराकाष्ठा होगी कि शीर्षासन में सामान्य लोग, मैंने भी अनुभव किया है कि पद्मासन में भी अगर करे फिर भी तकलीफ होने लगती है, और शीर्षासन में संपुट सप्तशती सावर्ण सूर्य तनयो इत्याद्यारभ्य सावर्ण भविता मनो इत्यंतम 700 श्लोक है, और संपुट मिलाकर तो 3 गुने हो जाते हैं। तो यह अद्भुत बात होती है जो सामान्य व्यक्ति में नहीं होती, लेकिन करपात्री जी महाराज के जीवन में हम देखने को मिलती है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि धर्म और ब्रह्म को अगर किसी ने संपूर्णतया समझा है तो वह है स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। अखंडानंद जी भी भगवत दर्शन प्राप्त महापुरुष थे, और उसने कहा, और करपात्री जी महाराज को तो किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वह अपने आप में परिपूर्ण है। एक संस्मरण याद आता है, करपात्री जी महाराज ने निश्चलानंद जी से कहा, जब वह शिष्य थे उनके, कि अब 2 महीने में मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है। निश्चलानंद जी रोने लगे कि हमसे कोई गलती हो गई है। स्वामी जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं रहा। दुख की बात है कि अगर अभी स्वामी जी होते, करपात्री जी महाराज, तो अभी भी बहुत दुखी होते, क्योंकि अभी भी जो गो हत्या हो रही है, वाराणसी आदि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर टूट रहे हैं, यह सब करपात्री जी महाराज को कभी मंजूर नहीं था। लेकिन हमको भी सनातन धर्म का प्रचार करके वेद सम्मत जो अनास्था खड़ी हुई है लोगों के हृदय में, उसको दूर करके हम स्वामी जी को भी एक अपना आश्वासन दे सकते हैं। उसके लिए कुछ हम कर रहे हैं, ऐसा हम भाव प्रकट कर सकते हैं। और दूसरी बात, स्वामी जी वेद के प्रति जो अनन्य निष्ठा थी वह आजकल सब लोगों में होनी चाहिए, जो नहीं दिख रही, क्योंकि वेद ही सर्व प्रमाण, सर्व शास्त्रों का उच्च स्थान है, वेद से ऊपर कोई नहीं है। तो स्वामी जी के जीवन में वेद की जो अनन्य निष्ठा थी वह हमें उनके जीवन से स्वीकारनी चाहिए और हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। मैं अपनी वाणी को इसी बात के साथ विराम दे रहा हूँ। नमो नमः। साधु साधु। So we can move on to Harshit ji for the questions. Yes, sir. Should I raise up a question? Or? Yeah. Okay. So in context of present days politics, Swamiji had his own deep ideas regarding the Ram Rajya, where he talked about Atmiyata, Bhratrata, and spirituality. इन तीनों के विषय में स्वामी जी ने जो बात करी अपने राजनैतिक दर्शन में, इन तीनों के समन्वय से समाज में जो प्रतिस्पर्धा है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है,
उनको दूर करने के लिए व्यक्ति सामान्य स्तर पे क्या निर्णय ले सकता है, किस तरीके से सामान्य जन में एक प्रतिस्पर्धा के कारण जो संघर्ष उत्पन्न हुआ है उसको कम करने के लिए स्वामी जी के दर्शन से हम कैसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं? स्वामी जी सब विषय को वेद सम्मत लेते थे। वेद में जो निरूपण किया गया है या फिर राजनीतिक आदि शास्त्र है हमारे, उनके आधार पर राम राज्य की जो कल्पना करते हैं, राम राज्य का जो वाल्मीकि रामायण आदि में निरूपण किया गया है, उसमें जो राजनीति के नियम थे उसके अनुसार राजनीति की स्थापना होनी चाहिए, यह भाव था करपात्री जी महाराज का। लेकिन आजकल के लोग जो है राजनीति को या फिर किसी भी हम संदर्भ में देखें तो स्वार्थ आदि जो द्वंद्व है उससे आवृत हो गए हैं। तो हमें उससे आगे उठना चाहिए। वेद को, पुराण को, राम राज्य आदि जो कल्पना हम करते हैं उसके जो नियम है, बंधारण है, उसको भी गणना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। और बिना वेद सम्मत नियम के, बिना शास्त्र सम्मत नियम के हम अपने विचार से किसी नियम को बनाए और उससे अच्छी परिचर्या हो, यह सब राजनीति आदि जो पार्टियां है वह अपने बनाए नियम से अच्छी तरह चले, वो तो शक्य ही नहीं है। क्योंकि इतने उत्कृष्ट नियम, इतने उत्कृष्ट सब परिगणना हुई है शास्त्र में, वह छोड़ के हम सामान्य सीमित बुद्धि से किसी नियम को नहीं बना सकते। तो हमारी जो यह कल्पना है वह शास्त्र के साथ हमें जोड़नी चाहिए, तभी हम इस विषय में आगे बढ़ सकेंगे। बहुत उत्तम निरूपण किया आपने। Now I just want to raise one more question in the same context. Swami ji, as Brijesh ji has already mentioned that Swami ji had a very strict lifestyle, and gradually he used to take only food in his Karpatra, and that's why he was called Karpatra ji. And we also read that in subsequent days he decided that I will take meals on alternative days, and then eventually one day there was an Ekadashi fast and he had to skip that meal, and then Nirjala consequently Nirjala Ekadashi, and then consequently he decided to do it, he decided to have food after 2 days. And then after some days there was a Chaturmas and there was another Upvas, and then he finally decided that after 4 days he used to take one meal among 5 days. So that is and he was also very cautious about where he gets his food. He was very particular in terms of quantity, that he has to take only limited quantity, and quality in terms of the source of that food. So we have to, what is the methodology in common populace? I mean, we should endorse और हमको प्रेरित करना चाहिए या हमें खुद अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि लोगों की भोजन आदि में जो शुद्धता है उसका वर्धन हो, स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेके। ऐसा है, आहार जैसा होता है वैसी हमारी मानसिकता, विचार बनते हैं। तो इसीलिए इतने स्ट्रिक्ट थे स्वामी जी। और हम अगर स्वामी जी के जैसे बनना चाहे तो इतना जल्दी तो संभव नहीं है। पहले हमें एकादशी का व्रत चालू करना चाहिए, बाद में क्रम बढ़ाना चाहिए, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके आहार पवित्र हो, सात्विक हो, जैसा कि भगवद गीता के अध्याय में 18वें अध्याय में निरूपण किया गया है, सात्विक भोजन किसे कहते हैं, ऐसा भोजन करना चाहिए। और भोजन को यज्ञ कहा है गीता जी में। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः आदि आदि जो निरूपण किया है। तो भोजन को सिर्फ क्षुधा निवृत्ति के लिए होने वाला साधन नहीं है। भोजन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो अन्न खाते हैं उसी से हमारा मन बनता है, हमारे विचार बनते हैं, हमारा स्थूल शरीर बनता है, रक्त आदि। तो हमें इन सब की बातों को ध्यान में रखकर अन्न ग्रहण करना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या होगा मेरे जीवन में। और चातुर्मास में भी जैसे
एक महीने में दूध वर्ज्य है वह, एक महीने में दही वर्ज्य है, एक महीने में द्विदल वर्ज्य है, पहले महीने में जो शाकभाजी है हरी शाकभाजी वह वर्ज्य है। वो क्यों वर्ज्य है? कहीं ना कहीं वह हमारे शरीर को नुकसानकारक है। तो यह हमें समझना चाहिए और हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। और ये तभी संभव है जब दृढ़ संकल्प करें, वरना ऐसा होता है कि जब एकादशी होती है तब ज़्यादा खाने का मन करता है कि आज ये खा लूँ ये खा लूँ। तो हमारा ये जो चंचल मन है उसको संयमित कर कर, और वह भी तभी होगा जब हमारा जो आहार है वह संयमित होगा। आहार से ही मन बनता है, तो बहुत जरूरी है। और अगर एक साथ ना हो तो धीरे धीरे हमें इस स्तर पर जाना चाहिए, तभी हम शास्त्र को समझ सकेंगे, तब वह बुद्धि परिष्कृत होगी और तभी हमारी जो विचार शुद्धि है वह होगी। जी। वहाँ पे एक और विषय कहना चाहता हूँ। मेरे एक और आचार्य हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उन्होंने एक भगवान नाम बोधेंद्र नाम के एक भक्त हुआ करते थे दक्षिण भारत में। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कबले कबले कुर्वन् गोविंदस्य अनुकीर्तनम नित्योपवासी स विज्ञेयः। तो ऐसा होता है कि जो व्यवहार में होते हैं, हम भी व्यवहार में हैं और दूसरे हमारे तरह के लोग भी व्यवहार में हैं। तो उनको अगर हम कठिन नियम बोले कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, यहाँ पे नहीं खाना चाहिए, वहां पे नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, वैसा नहीं खाना चाहिए, तो वो तो जीवन धारण करने के लिए, प्राण धारण करने के लिए जो आहार चाहिए उसको भी खाने से बचेगा। तो उसके लिए उपाय क्या है? उपाय यह है कि अगर मान लीजिए कुछ भी नियम पालन नहीं कर पा रहा है, उसको भी शास्त्र जो है, धर्म जो है, उसको एक सुलभ तरीका बोलती है कि कवले कवले गोविंदस्य अनुकीर्तनम कुर्वन् नित्योपवासी विज्ञेयः। अगर मान लीजिए हर कबल में, हर में वो गोविंद का अनुकीर्तन करके खाता है, जो वो खा रहा है, तो वो उसको जो है नित्योपवासी मानना चाहिए, नित्योपवासी हो ही जाता है। तो यहाँ पे विशेष यह है कि उपवासी क्यों कहा? उपवासी इसके मुख्य अर्थ से कहा, शब्द के मुख्य अर्थ जो है वो है उप समीपे वासः, भगवान के पास रहना। तो उसके कारण, क्योंकि हम तो हर समय खाते ही रहते हैं, अगर मान लीजिए खाने को एक भगवान के स्मरण का इष्ट तरीका बना लिया, तो हम नित्योपवासी बन जाएंगे। तो ये उपाय मेरे एक आचार्य ने मुझे बताया था और इसका भरपूर मुझे लाभ मिला, क्योंकि कोई आहार नियम पालन करने वाला नहीं था। अभी भी जो है ऐसे जिह्वा लालसा से यहाँ वहाँ खा लेता हूँ, अब भी करता हूँ। तो उस समय ये जो आचार्य ने जो कहा था, उसका मैं बहुत ज्यादा तो नहीं करता आजकल, किंतु पहले तो बहुत, लेकिन जब भी करता हूँ तो ये जो है ये बहुत उपयोगी मेरे लिए सिद्ध हुआ है।
Srivatji, as you have suggested, we are going to organize some readings from Karpatriji in a few days. We will pick up one relevant issue, and we will try to learn from Brajeshji, and we will try to start reading, starting from Laukik texts, and then we will move on to the Vedic texts because of the higher difficulty. Because especially the book called Bhakti Ras Arnav. So this book has been written in Sanskritam, but Swamiji said that the only person who realizes the Shakti of Gyan and Bhakti, who realizes Gyan and Bhakti, will be able to translate this book into respective language, Hindi or English, when he was asked. And Swamiji has written equally in two languages, Hindi as well as Sanskritam, Chaturvanya Vyavastha Vicharaha, and the book on Vedanta. Samskriti Vimarsha. Sanskriti Vimarsha is written in Sanskritam, and that holds a lot of relevance even in today's time. And I will like to put up another question to both of you in the same light. There are two parts of this question. So the first part is that the Ramayana Mimamsa was written by Swami Karpatriji as a critique to Kamil Bulke's missionary propaganda that he introduced by imposing the biblical lens onto Ramayana. He neglected the original spirit of Ramayanam, and he used his missionary agenda to put in there. When it was brought to the notice of Swami Karpatriji, he immediately recognized that this has to be countered immediately. Now, today, we have all these texts which are being written in more sophisticated manner. Kamil Bulke was, or in English we call it Kamil Bulch, and उनकी जितनी भी पुस्तकें उन्होंने लिखी वो तो स्पष्ट थी कि वो ईसाइयत के विषय में थी, परंतु आप ये देखिए कि आज के समय में जो हिंदू विरुद्ध और वेदों के विरुद्ध जो लिखते हैं वो और ज़्यादा छुपे हुए तरीके से लिखते हैं और स्पष्टता से नहीं लिखते हैं। तो हम लोगों को या हमारे जो विद्वत समूह हैं भारत में, उनको पुनः वो प्रेरणा लेके क्या इन ग्रंथों का पुनः क्रिटिक करना शुरू करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, इस पे क्या मार्गदर्शन है? प्रश्न क्या था हर्षित जी? कैन यू प्लीज रिपीट द लास्ट सेंटेंस? प्रश्न ये था कि आज जैसे डिफरेंट विदेशों में कॉलेजेस में हिंदू धर्म के विषय में लिखे जाने वाले जो भी लेख आदि हैं वो स्पष्ट हिंदू विरोधी हैं, परंतु क्या हमारी विद्वत परिषद में कोई आगे आके उनका खंडन पूर्व पक्ष को जैसे स्वामी जी सुनते थे, सुनने के बाद उसका पुनः खंडन करने के प्रकल्प क्या है अभी हमारे बीच, और अगर नहीं है तो उनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक चीज है हर्षित जी, ऑपोजिशन जो है ना वो इंटेलेक्चुअली हमारे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, किंतु वो कैसे सक्सेस हो रहे हैं उसको ठीक से समझना चाहिए। वो उनके पास जो है जो भी लोग हैं, जो डेडिकेटेड लोग उनके पास हैं, they are dedicated, they are not very intellectually sharp, but what they are able to do is they are able to say the lie 1,000 times. तो अगर मान लीजिए एक ही जो झूठ है वो हर जगह उसको मिल रहा है, उसको पेपर में भी वही पढ़ने को मिल रहा है, न्यूज में भी उसी को देखने को मिल रहा है, और जो है ट्विटर में भी वही मिल रहा है, तो वो समझने लगेगा कि लोग तो ऐसे ही सोच रहे हैं। तो यही
सच होना चाहिए। तो इसमें जो उनका जो खंडन जो है वो तो करना है, उसको उसको मैं उसकी प्रधानता को मैं कम नहीं कर रहा हूँ, किंतु जो खंडन पहले से भी हो चुका है, जैसे मान लीजिए आर्य समाजियों का खंडन 100 साल से चल रहा है, ऑलमोस्ट दयानंद सरस्वती के टाइम से ही चल रहा है, तो 150 ईयर्स से तो चल ही रहा है। किंतु आर्य समाजी अब भी क्यों उनका 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 प्रभाव उतना नहीं है, किंतु अब भी है, वो इसलिए क्योंकि उनका जो डेडिकेशन है ना, इट इज एन इलॉजिकल डेडिकेशन। अगर मान लीजिए कोई अच्छे से स्वामी करपात्री जी का जो वेदार्थ पारिजात है उसको पढ़ेगा, तो उसको ठीक से पता चलेगा कि ये जो दयानंद सरस्वती है, इसने कितना बड़ा धोखा किया था, कितना बड़ा फरेब किया था हमारे खिलाफ। किंतु अब तक वो प्रकाशित होने के बाद भी क्यों आर्य समाजी है, वो इसलिए क्योंकि जो ऑर्डिनरी आर्य समाजी है उसको तो एक त्राल में रखा जाता है, एक उसको छोटे आयु से ही उसको वो किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। तो नंबर 1 इज प्रोड्यूसिंग स्कॉलरली लिटरेचर, आपने जो बोला वो तो ठीक है, किंतु वी हैव टू यूज द मीडियम्स दैट आर अवेलेबल टू अस। जैसे यूट्यूब है, वहां पे कोई किसी का रोक नहीं है, ट्विटर है, वहां पे किसी का रोक नहीं है, तो हमें वी हैव टू यूज दीज मीडियम्स टू आवर एडवांटेज, एंड इट इज ओनली in the past 15-20 years that the tide has started changing against those people. Varna to it was like there were some so-called fake scholarly works by these Christian missionaries, and those were propagated through the mainstream media. न्यूज़पेपर हो या चैनल हो, वहां पे उनको प्रचारित किया जाता था, और सामान्य हिंदू के पास कोई वो ही नहीं था, जरिया ही नहीं था उनको काउंटर करने के लिए। अभी तो हमारे समय में मान लीजिए 3-4 साल, 5 साल के इंटरवल में मैं बोल रहा हूँ। जैसे आप लोगों को याद होगा, एक हुआ करते थे अमित शर्मा वशिष्ठ, तो उन्होंने ये कबीर पंथियों को, रामपाल वाले पंथियों को, उनको अच्छे से शास्त्रनिष्ठ तरीके से उनको यूट्यूब चैनल में, अपने यूट्यूब चैनल में वो काउंटर करते थे। तो ऐसा है कि हमारे पास कोई इंटेलेक्चुअल मटेरियल की कमी नहीं है। we have to make our own people the channels of conveying these messages. So the more and more we are able to co-opt people, the faster our message, the faster the real message of Shastra will start reaching them. So to summarize, it is not a question of any intellectual weakness. It is a question of delivery mechanisms being slow earlier, and we are just started to see. Can you imagine, Harshit, people who are 20 years old, 21 years old, they are reading Manusmriti, and they are posting snippets of Manusmriti on the net. I'll give you 2 examples. Both of them are Abrahmanas. One is this humorless Arya. He's a Jat, but he is so dedicated that he listens to Swamiji's Puri Jagadguru's videos,
and then there is another chap called Sukarma. So he's a Khatri, he's a Punjabi Khatri. He is taking out snippets from various Dharma Shastra, Manusmriti, etc. to counter these gay people. So it gives us a lot of hope. It just means that, see, with these sort of young and motivated people available, we should actually see. For me, even in our time, people making these sort of defenses was almost unheard of. So I find a lot of positivity. I find a lot of hope. So we have to, and personally, I'm in touch with these people, Humorless Arya, Sukarma. So whenever they ask for, um, we made a small Telegram group. Also, it has some 40 people. I invite all of you there. So that is a group where we discuss any of the urgent topics, or some topic somebody is countering on Twitter. He wants some intellectual backup, so we can deal with a lot of you know uh, we can fight these things together. And if we fight these things together, the load on an individual person will be low. So that's what I think. Jai Jagannath. Thank you, Sri. That's a good insight on this. We were हम इस विषय में सोच रहे थे कि जिन विषयों को करपात्री जी ने लिख दिया है वो तो हमारे पास हैं ही दुर्लभ ग्रंथों के ऊपर, पर आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमको अपना प्रचार तंत्र भी उसी तरीके से सशक्त करना चाहिए। और दूसरा विषय ये है कि हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर जो आघात हो रहा है वर्तमान में, जिसके लिए वर्तमान स्वामी जी भी नित्य संघर्ष कर रहे हैं, उसके विषय में अगर ब्रजेश जी आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि हमारे पास 7 मिनट हैं और हम फिर कंक्लूड करेंगे। तो आखिरी आपके कमेंट्स की वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनः स्थापित रखने में, अंतरजातीय विवाह जैसे कुकृत्य को रोकने के लिए, वर्ण संकरता और रक्त संकरता को खत्म करने के लिए क्या प्रकल्प हम लोग को करना चाहिए? जी, वर्णाश्रम व्यवस्था जो वेद प्रतिपादित है, लोग गलत अर्थ करते हैं। यहाँ तक कि जो कथाकार है, जो लोगों के आइडल है, लोग उसको भगवान मानते हैं। ऐसे लोग भी, यह दुखी की बात है कि वह लोग भी कर्मणा वर्ण व्यवस्था को मानते हैं कि जो लोग कर्म करते हैं वह उसी वर्ण के होते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जो ये पक्षधर है, लोग अपने आप को कथाकार कहते हैं, उनको सही बात समझने की आवश्यकता है। दूसरी की, अगर वेद में श्रद्धा नहीं है, परंपरा में आपकी गति नहीं है, पुस्तक पढ़ के आप उसके अर्थ करोगे तो फिर यह संभव नहीं है कि आप उसका सही अर्थ कर सको। तो इसी के लिए किसी अच्छी परंपरा है, जैसे कि शांकर परंपरा है, निश्चलानंद जी की जो परंपरा है, अन्य पीठ की जो परंपरा है, वह जो श्लोक के जो वर्णाश्रम आदि वर्ण व्यवस्था के जो प्रतिपादन करते हैं, उसमें पहले श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तभी आप उसकी बात को स्वीकार कर सकोगे। पर ऐसा नहीं है कि लोग वेद विरुद्ध है, लेकिन यह जैसा कि कहा, आर्य समाज है, रामपाल है, यह सब समाज ने वेद की गलत परिभाषा करी है और सरल करी है। इसलिए लोग वहाँ पर आकृष्ट होते हैं कि ये तो हमारे जैसा ही, हम जैसा जीते हैं वैसा ही वेद कहता है, लेकिन इतना सरल नहीं है। थोड़ी सी अगर तकलीफ सहनी भी पड़े तो वह सहनी चाहिए, लेकिन वेद विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। वर्ण व्यवस्था जो जन्मना है वह स्वयं सिद्ध है, श्रुति प्रतिपादित है, स्पष्ट रूप से कहा है, गुण कर्म विभागशः। और यह गुण कर्म कैसे आते हैं? पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनके संस्कार से ही गुण और कर्म बनते हैं, स्वभाव बनता है, और उसके अनुसार ही वर्ण व्यवस्था होती है। लेकिन लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि जो आप कर्म करते हो वैसे ही वर्ण के हो जाते हो, लेकिन यह संभव नहीं है। और जैसा कि निश्चलानंद जी कहते हैं कि जन्म सिद्ध अगर आपकी कोई आजीविका निश्चित होगी तो देश पर जो संकट आता है, यह जो
रोजी रोटी कमाने की जो तकलीफ होती है वह नहीं होगी, क्योंकि जन्म से ही सिद्ध हो कि आप जिस वर्ण के हो उस वर्ण के अनुसार कर्म करो, आर्थिक अर्थोपार्जन करो, अपना जो आजीविका है वो चलाओ, तो इसमें फायदा ही है। लेकिन वेद विरुद्ध जो लोग हैं उसने ऐसी मानसिकता बना दी है और वेद के जो सिद्धांत है उसको ऐसा गलत तरीके से स्पष्ट किया है, निरूपित किया है कि लोग भ्रम में पड़ गए हैं, कंफ्यूज हो गए कि किसकी बात माने। बाद में सिर्फ वही बात मानते हैं जो उसके अनुसार हो, उसको जो अनुकूल होती है, उसके जीवन में जो अनुकूल होती है वह बात स्वीकार करते हैं। लेकिन परंपरा की आवश्यकता है, अच्छे मार्गदर्शक तो है, लेकिन उसको सुनने की आवश्यकता है कि वह क्या कहते हैं, वह सिद्धांतों को कैसे प्रतिपादित करते हैं। जी धन्यवाद टीचर जी। ये तो अब मैं इस पूरे परिचर्चा का एक सारांश कहता हूँ। धन्यवाद दिनेश जी और धन्यवाद श्रीवत्स जी कि स्वामी जी की आज वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है और उनके जीवन को आदर्श समझ के हमारी जो नित्य कर्म आदि हैं उनमें निष्ठा बढ़े, भोजन आदि प्रकल्पों में शुद्धता हो उनका जीवन का अनुसरण करके, और धर्म को और शास्त्रों को सर्वोपरि मानने वाले स्वामी जी का हम अनुकरण करें। यही सभी के मन में होना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी हमेशा निर्लिप्त रहे किसी भी आकांक्षाओं से, किसी भी प्रकार के महिमा मंडन से भी। जब हरिद्वार में उन्होंने शास्त्रार्थ जीता था तो लोगों ने कहा था कि आपको हम गज सवारी कराएंगे, अश्व सवारी आदि कराएंगे, तो करपात्री जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि शास्त्रार्थ का उद्देश्य जो है वो ख्याति प्राप्त करना नहीं है, अपितु धर्म की स्थापना करना है। फिर दूसरा प्रकल्प में उन्होंने जो है अपने प्रतिद्वंदी या अपने मित्रों के पूर्व पक्षों को सम्यक रूप से सुना और उसका निवारण किया। जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया, मैं प्रणव उच्चारण की दीक्षा देने के विषय में, तो जिस प्रकार ये प्रकल्प काशी में हुआ था जब मालवीय जी प्रणव दीक्षा दे रहे थे विभिन्न लोगों को, और उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए करपात्री जी को आमंत्रित किया और अंततो गत्वा निषेध विधि को ही प्रबल माना गया सभी जो भी उस मंडल के सदस्य थे। फिर उसके अनंतर हमने ये देखा कि स्वामी जी एक धर्म प्रवर्तक थे। उस समय जो समस्याएं हमारी थी, हमारे पास गुरुकुलों की कमी हो गई थी, जैसे आंग्ल भाषा का प्रभाव 100 साल में कॉले आदि के कानून के लिए हो गए थे, उन्होंने गुरुकुल आदि बनाए। लुप्त हो जाने वाली यज्ञ आदि परंपराओं को स्थापित किया। चंडी यज्ञ और कानपुर और दिल्ली आदि यज्ञ में दिल्ली आदि नगरों में यज्ञ आदि को संपन्न कराया, काशी में यज्ञ को संपन्न कराया, और इस तरीके से वह परंपरा पुनर्जीवित हुई। चीन के युद्ध के समय स्वामी जी ने शेन याग की भी एक संस्तुति की थी जिससे कि भारत को उसका सहाय मिले। तो उन्होंने एक धर्म प्रवर्तक की तरह से पुनः इस धर्म को नई ऊर्जा दी अपने चरित्र और अपने कार्यों से। फिर जैसा कि हम सब ने देखा कि स्वामी जी एक बहुत बड़े उनके भाष्य आदि अत्यंत उनकी बौद्धिक प्रगल्भता के सूचक हैं, और उन्होंने इन सारे ग्रंथों को प्रतिपादित करके एक हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक रत्न संग्रह के रूप में हमको दिया है, जिससे हम नित्य मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। और राजनैतिक क्षेत्र में उन्होंने जिस प्रकार की प्रकल्पना की, जिस प्रकार के अपने बौद्धिक चिंतन को वेद आदि शास्त्र के अनुरूप जो है स्थापित किया, और वर्णाश्रम आदि व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। और जैसा कि हम सभी ने परिचर्चा की कि हमको उनके ग्रंथों को पुनः पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, परंपरागत उनके बताए हुए मार्ग का अनुकरण करना चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो उनके द्वारा स्थापित शिष्य आदि हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। उनके सानिध्य में रह के हम लोग जो भी उनके कार्य आदि हैं उनको आगे बढ़ाएं। उनके जो अप्रकाशित ग्रंथ बचे हुए हैं धर्म संघ आदि में, ऋग्वेद आदि के भाष्य, उनके लिए
कोई प्रकल्प बना के उन्हें प्रकाशित करने का एक कोई प्रयास करें जिससे कि और लोगों तक पहुंचे। बस इसी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त